to write its domain range and the set builder form. Sir, I couldn't find my handout. I couldn't find my handout, like the sheet. You coming now? Yes, yes, I'm on my way. Okay. I'll write on the board. Okay. Question 61. You have two sets, P and Q. This is 9, 4, and 25. This is basically a relation. 9 is related with 3. 9 is also related with -3. 4 is related with 2. It is also related to -2. 25 is related with -5. And it is also related with 5. All right. So there are two sets. Arrow diagram has been given. The question is write in set builder form and the domain range also. And also its roster form. So we need to write this arrow diagram, which is a relation basically, into set builder form. This is basically, I can call it X. This would be Y. So can you figure out what kind of relation is there between X and Y? Y square equals to X. Right. Fine. So basically you can say that X is equal to Y square. So we can say that R, the relation is X comma Y, such that X is equal to Y square. And X and Y, they are integers. Integer you can represent by Z also. And where you can also say that X is 4, 9, and 25, because we have to basically restrict the values of integers also. Okay. What about domain of the relation? Domain of the relation would be set of values of X, 9, 4, 25. Range of the relation would be -5, -3, -2, 2, 3, and 5, right? And what is the roster form, Advika? Yeah, all the ordered pair. Like you have the first order pair, 9, 3, 9, -3. Okay. 4, 2, 4, -2. Then 25, 5, and 25, -5. So that is the roster form. When you write all the ordered pairs, it's called roster form. Next karo, 62. कौन सा 62 कर लिया तुमने 62 कर लिया है 60 ये कौन सा 62 है okay so A is this and this is a relation A B belongs to set A and A is exactly misprint है लिखो B यानी B लिख लो B is exactly divisible नंदिनी डन समझ में आ गया Yes, sir. क्वेश्चन 62
You keep this assignment. This is more clearer. And it's, all the pages numbered one. Kavya, the next question is 62. I'll write it on the board. Yes, sir. A has been given. 1, 2, 3, 5. Set B has also been given to us, which is 4, 6, 9. Hmm. And relation from set A to set B is defined as x comma y, such that the difference between x and y is odd, where x belongs to A and y belongs to B. Write in the roster form. See, Okay. when you find difference between odd and even, it will be always an odd number. Oh, Difference between odd and odd will be even. Difference between even will be also or even. even. Yeah. So you have to find different. You have to make pairs of odd and even. है ना? So, sir, will both 1 and 4 But and this is 4 even. and 1 count? It says the question is no. A is belong x. Oh, okay. So, we'll take 1 and 4, Hmm. 3 and 1 4. and 4 odd. 1 and 3 is even. You can't take 1 and 3. Not 1 and 3, sir, 3 and 4. Yeah, you have to take odd and even, na? You have to take those numbers which are basically combination of odd and even. Because Yeah, the so difference, 1 and 4, 1 and yeah, 6, 1 and 9. 1 and 9 can't be, because 1 and Oh, 9 will be sorry, my bad. And 3 and 4, 2 sir, with 1 and 9, 6, 2 yeah. with 9, 3 with 4, 3 with 6, Oh, and then 5 with 6 4, 5 with 6. and 5 and 6. So basically combination of odd even numbers. Hmm. ठीक है. Next is given figure shows the relationship between the sets P and Q. Write the relation in set builder form and roster form. Again, mapping has been given. Arrow diagram has been given between two sets P and Q. This is 5, 6, 7, 3, 4, 5. 5 is related with 3, 6 with 4, and 7 with 5. So you need to identify the relation between the two. It's x minus 2, right? Equals y. Yeah. Hmm. A minus B is integer. So if A is integer, B is integer, then the difference will also be integer. Yeah. Yes. So if you notice, that is no, you'll say integers only. It won't be minus in, because when you say minus infinity to infinity, it'll be real set of real numbers. Minus infinity to infinity would be set of real numbers. In real number, you can have 1.2 also, 1.3 also. So यहाँ पे integer लेना पड़ेगा, तो that will be z. So if you notice here, the relation between the two numbers is like this: x comma y, such that x minus y equals to 2. If you see, 5 minus 3 is 2, 6 minus 4 is also 2, 7 minus 5 is also 2. And x belongs to P and y belongs to Q. The difference between the two is, हाँ, ठीक है, same thing.
नो, y माइनस नहीं लिखोगे ना, y, नहीं नहीं ऐसा मत करो, बिकॉज x, it's always like that कि x is always the first set, it should belong to this set, y always belong to second set. हाँ x belongs to, हाँ तो x, अगर x, तो 5 is not 3 minus 2 ना, देन उल्टा हो गया। हाँ प्लस करो, इसका रोस्टर फॉर्म भी लिखो। द रोस्टर फॉर्म इज 5, 3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, 6, 4, 7, 5 एंड दैट्स इट। दिस इज रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग, 62, 60 कर लिए, कितने कर लिए? गुड, नाइस। 64 कर दो, आओ बोर्ड पे 64 करो, 60, क्वेश्चन 64 करो। बेसिक मैथ्स नाउ, जे मैथ्स, यस, स्लोली स्लोली। नहीं नहीं, इसमें स्लोली नॉट, हाँ हाँ, नहीं अभी तो ग्रेजुअली होगा। जोर का झटका धीरे से। इफ आई गिव द झटका राइट नाउ, तो फिर तुम लोग क्लास में आना बंद कर दो। नहीं नहीं, वो विल टेक टाइम, विल गो ग्रेजुअली टू दैट लेवल, फर्स्ट कवर द बेसिक देन मूव टू हायर लेवल, द मोर हायर लेवल बिन नेक्स्ट ईयर। But after doing the basics of each chapter. Sir, I didn't understand 64. कौन सा? 64. It says B is, it says there's a misprint, B is exactly divisible by A. There's slight misprint. A comma B belongs to set A and B is exactly divisible by A. Hmm? हाँ, राइट राइट राइट। एक बार ये लिख दो, रिलेशन लिख दो वर्ड में, है ना, रोस्टर फॉर्म में, दैट A comma B is exactly divisible by A, वो लिख दो। Set A has been given 1 to 6 and the relation is that B is exactly divisible by A. हाँ हाँ, वो मिस प्रिंट है यहाँ पे, देखो, चेक, लिख लो 64 में। हाँ दोबारा तो ठीक है। क्या हुआ काव्य, वही क्लास? तो B should be divisible by A. So all those pairs where this condition is being satisfied. So one divides, no, सारे one के सारे लिख लो ना, one divides all the numbers. So one divides all the numbers, so one के साथ सारे आ जाएंगे। क्या? नाइस। ठीक है, गुड, सारा कर रहे हो ना? नाइन। ये लो, इसमें सारे पेज 1 में है लेकिन मिसप्रिंट है, देखो। क्या था? x डिवाइड्स y, है ना, तो 2 डिवाइड 6, गुड। एक मिस, हाँ सही तो कर रहे हो। 2 डिवाइड्स 10, ये क्या है, 3 है, 2 है, तो ये भी तो आएगा 2 डिवाइड्स 10, देन, है ना मिस, ये 3 है, 2 है,
अच्छा, फिर और So ये 100. नहीं, हैंडराइटिंग ठीक है तुम्हारी, तुम जल्दबाजी करती हो बस। फिर दूसरा कौन सा है? 5 10 हो गया। 4 नहीं होगा कहीं भी, परफेक्ट, ठीक है। नहीं नहीं, 1.5 आवर मैथ्स, 1 आवर एप्टीट्यूड। या गुड, हो गया। नंदिनी, हो गया ये वाला? Yes, sir. ओके। पर तुम्हारा एप्टीट्यूड क्लास तो ऑनलाइन होता नहीं है, क्या करोगी, याद आओगी फिर अब? I'm not sure, sir. ओके। 65 कौन कर रहा है? आ जाओ, बोर्ड पे करो, हाँ। दिस इज ऑन ट्रिगो। ट्रिगो का असाइनमेंट है ये। इसको सेकंड नेक्स्ट पेज ले लो, अद्विका, नेक्स्ट पेज कर लो, अब करो। सब्स्टिट्यूट कर लो ना, लाइक एक कोई बात नहीं, आराम से सब्स्टिट्यूट करो, नंबर्स आ जाएगा आंसर। क्या कर रही हो? 1 2 से डिविजिबल है। बी इज डिविजिबल बाय ए। बी ये है, ये है, तो इस सारा उल्टा हो गया, हाँ। सारा रिवर्स करो। क्या हुआ? हम्म, ठीक है ये। एक्स एक्स स्क्वायर प्राइम नंबर लेस देन। सही तो कर रही हो? क्या था? 65। हाँ, वो वही मैं तो बोल रहा हूँ, जल्दबाजी करती हूँ। हम्म, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट बोर्ड पे कर रही हूँ। 66 कर दो। हाँ, अदर साइड वाला हो गया। देखो, अगर तुम ए को 1 डालोगे तो बी आएगा 11/3, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ बस, ठीक है, दैट्स इट, हो गया। कौन सा? नंबर ऑफ रिलेशंस 2 raised to power m into n। If A has n elements, B has cardinal number m, so number of relations 2 raised to power m into n होता है। 2 raised to power 6 हो जाएगा 64। m is the m into n is the cardinal number of A cross B. If suppose you have set A has cardinal number n, set B has cardinal number m, then A cross B is a Cartesian product, and its Cartesian product has cardinal number m into n. So number of subsets were 2 raised to power mn, and number of relation were also 2 raised to power mn.
नंदिनी तुम कौन सा कर रही हो अभी? 67. ओके। सेवेंटी वन में काव्य तुम 68 बोर्ड पे करोगे? 68 कर दो। 71 में यू बिन गिवन इनवर्स ऑफ, हाँ 60, हाँ 7, ये वाला है ना। लेस देन मतलब इफ आई हैव एन ऑर्डर्ड पेयर, पेन दो। इफ आई हैव एन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए इज लेस देन बी। देखो क्या हुआ, तुम ठीक हो? क्यों? तो इस ए लेस देन बी ना, लेस देन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब ए शुड बिलोंग टू सेट ए, बी शुड बिलोंग टू सेट बी, ए इज लेस देन बी। तो जैसे तुमने किया वन वन नहीं आ सकता है ना, लेकिन वन फोर आ सकता है। वन दैट मीन्स बना लो सारे ऑर्डर पेयर। कौन सा? डोमेन, हाँ परफेक्ट, बिकॉज डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर वुड बी ऑलवेज राइट। ठीक है। difference of two integers will be always an integer, but you can't say the same for natural numbers, whole numbers. Difference of, yeah, q is rational number, t is irrational, and q union t gives you a set of real numbers. चेक कर रही हूँ आंसर पीछे, कर लो सही रहता है। हो सकता है कोई ऑर्डर पे मिस हो जाए, पता लग जाएगा ना। क्या हुआ? हम्म। होल नंबर सब्स्टिट्यूट करने हैं तुम्हें इसमें ना। ए एंड बी बोथ है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, राइट। कौन सा? डब्ल्यू, हाँ, नेचुरल नंबर प्लस जीरो। So you just keep filling this number, like A is 0, you get B5, A1, you get 3, like that. No, no, stop. A को तुम 3 डालोगे तो नेगेटिव आ गया, that's it. A को if you substitute 3, then B would be -1, that's not possible. नंदिनी, any doubts? कुछ पूछना है? सर मेरे को 66 नहीं समझ आया. 66, तो it was number of relation from set A to set B ना। नंबर ऑफ रिलेशन का ये फॉर्मूला था, मैंने लिखा तो था यहाँ पे ये, दिस इज नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो उस क्वेश्चन में कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना था? 3, 3 है ना, 3 Yes. एलिमेंट्स हैं। सेट ऑफ कार्डिनल नंबर बी कितना था? दैट 2 एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 रेज टू पावर m into n, Okay. 2 रेज टू पावर 6, दैट इज 64। Yes. आंसर भी चेक करते जाओ पीछे। तुम कौन सा कर रही हो? 68। हम्म। ठीक है, हाँ राइट राइट, बोर्ड पे कर दो ये।
लैटिस दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को लैटिस बोलते हैं। क्या वो मिस हुआ था कुछ? हाँ लिख दो, बता। क्वेश्चन नंबर भी लिख दो, कौन सा कर रहे हो? 5321, यू कैन यूज दिस। नहीं हो गया, अभी रुको। अब लाइट राइट। क्या हुआ, हो रहा है? ठीक है। सब हो जाएगा, डोंट वरी। लॉग हम कर लेंगे अलग से ना, लॉग की प्रॉपर्टीज करा दूंगा। ग्राफिकली एरो डायग्राम बना दो। इज इट अ रिलेशन और व्हाट? कौन 69 ना? इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट में तुम लेटेस्ट बना सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, जैसे कोई ऑर्डर्ड पेयर 1,1 आ रहा है तो यू शो इट लाइक दिस। So when write in the coordinate system, that's called graphically. Nandini, which question? I'm on 69. Okay. अद्विका 69 बोर्ड पे करो। आंसर चेक करियो ना। अद्विका ये वो वाला क्वेश्चन था ना, इसमें लैटिस बनाना था। क्या था क्वेश्चन? वही वाला है ना, तो तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाना है इसको। लैटिस इज बेसिकली व्हेन यू मार्क दीज ऑर्डर्ड पेयर इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ उसमें मार्क करना है, तो कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करना है, डॉट्स बना देना उसमें, ठीक है। पहले तुम एक वो निकाल लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो पहले। हाथ दर्द हो जाए तो चेंज कर लेना, लेफ्ट से लिख देना फिर, है ना। दूसरे हाथ से सपोर्ट ले लेना। सो दीज आर 6, है ना। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, चलो पहले सारा लिख लो। अभी तुम लिखो तो सही, आई मेक इट छोटा। ये एक क्रॉस बी वाला ना? हाँ ठीक है, देन यू डू इट फॉर द अदर वन ऑल्सो एंड दैट्स इट। बी क्रॉस से तो इसका रिवर्स हो जाएगा। अब तुम्हारा हार्ट टूटने वाला है लग रहा है मुझे।
मतलब this shifted to the fourth quadrant, second वाला ना. हाँ, and the first will remain in the first only. या फर्स्ट नहीं, जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट में नहीं रहेगा बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव. हाँ, दे आर डिफरेंट बट ये रहा ना, मतलब जब चेंज्ड. अब रुको 1 मिनट को ना छोटा करते हैं. नाउ यू ड्रॉ, पहले वाले का एक क्रॉस भी को मार्क कर लो. 69 दिखाना तुम्हारा. हम्म. अच्छा, नीचे आ गया ना, ठीक है. राइट. हम्म. तो तुम पता क्या करती, थोड़ा डिस्टेंस बड़ी लेती ना पहले, यू जस्ट मार्क 1 2 3 4. 1 2 3 4 like that. -1 -2 -3. Then you mark it. चेंज कर लो कलर, डॉट बना दो इस सिर्फ, या तो है ना, डॉट मार्क कर दो. करो, अब डॉट मार्क करो. -1 2. ठीक है. देन 2 here, right? Then 3 3 above it, and then 2 4 will the left side. 2 4 इधर आएगा ना. अच्छा, 4 2 भी है, ठीक है. हाँ, ये हो गया. और क्या, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी हाथ की तुम्हारी. दाओ दिखाओ, कहाँ बनाओगे, इधर बना लो. करो. हम्म. हम्म. हाँ, ठीक है. कोई बात नहीं, चलने दो, रेड से मार्क कर देना, होने दो उसको. नंदिनी, हो गया ना ये वाला. लेटेस्ट के हमने किए थे पहले भी क्वेश्चंस. हाँ, समझ आ गया. हम्म. तुम इसको लिखो मत ना, व्हाट यू डू जस्ट मार्क. अच्छा, वो लिख रही हो क्या तुम? तो छोटा लिखो. लाइक व्हेन यू राइट इट, लिफ्ट द पेन, देन अगेन राइट. हाँ, लिफ्ट करके फिर लिखो. एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हाँ, हाँ, ये भी करेंगे हम लोग, ठीक है. यहाँ तक कर लिया हम, अब फिर फंक्शन करते हैं. टिल 77 कर लो, फिर आप फंक्शन करेंगे शुरू. इस बार तो इट चेंज द कलर. किससे करोगे? येलो. ये वाला ले लो, येलो. बहुत लाइट होगा. जस्ट मार्क द डॉट्स. हम्म. Inverse will be basically the just if you have a comma b, the inverse would be b comma a. The ordered pairs will get reversed. क्या सही तो? Sir, हाँ. for each question, like A into B, B into A to B need to show on different coordinate systems? हाँ, because जो like a cross b में the when you had point -1 comma 2, it was in second quadrant, but then when it becomes 2 comma minus and it goes to fourth quadrant. Okay. Because the x becomes y, y becomes x ना. वैसे देखा जाए तो a क्रॉस b अगर r है, then b क्रॉस से would be r inverse, ठीक है. Yeah. हो गया. लास्ट वाला छोड़ दो.
यू टू आंसर टिल 77 क्वेश्चन, है ना, उसके बाद हम फंक्शन करेंगे. सृष्टि तुम 70 कर दो बोर्ड पे. x divides y. अच्छी, मैं आई वाज रीडिंग दिस. कौन सा कर रहे हो, ये वाला ना? अच्छा, ठीक है. हम्म. So in inverse, all the ordered pair will just get. रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये होता है जिसकी द टू नंबर्स डू नॉट हैव एनी डिजिट इन कॉमन, लाइक 4 इज a composite number, it's not a prime number. हाँ, 4 and 6 they are not co-prime because 4 and 6 have a common factor 2, but 4 and 5 will be co-prime. Yeah, 4 and 9 will be co-prime because 4 can't divide 9, 9 can't divide 4. Yes, that is they don't have any common factor. X divides y, right? 2 से स्टार्ट कर लो. 2 6 हो गया है ना, बिकॉज x 2. हाँ, 2 2 10 हो जाएगा बिकॉज 2 विल डिवाइड 10 ऑल्सो. फिर 3 ले लो. 3 6 3 3 लाइक दैट. You should not miss any ordered pair. Hmm. Right. Then with 4 you don't have any number. 4 but 4 is not there in the set B, है ना. 5 and 10 हो जाएगा. क्या हुआ, 72 कौन सा था? सारे इंटीजर हो गए ना मेरे ख्याल से. 5 +5 -5 +4 -4 +3 -3. In the sense, 5 is 0, yes, 0 is integer. -5 and 0, सारा हो जाएगा. नो, बिकॉज डोमेन का मतलब होगा in relation domain need not be equal to a, it could be less than a also. See, 4 is missing, 4 is not there part of the. But in case of function, entire set A will be domain. So that, so you write r or minus into infinity. कहाँ तक पहुंचे तुम? ओके. हाँ, आर इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, ठीक है. आर इनवर्स को तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तो क्या लिखोगे? एक्स कमा वाई, वाई डिवाइड्स एक्स. नंदिनी, क्लियर हो गए? Yes, sir. सारा लिख के कर रही हो ना? Yes. दिस वाज क्वेश्चन 70. काव्या, आ जाओ. ये 70 था ना, 71 कर दो. हम्म. वो कॉपी देके क्यों कर रही हो, खुद से करो. मतलब वो भी तुमने किया है वैसे.
कौन सा कर रही हो? अरे ठीक है, 2। ओके, अब बिकॉज इक्वल साइन भी है ना उसमें। ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है तुम्हें? समझ में आ रहा है कैसे करना है? एक्स एंड वाई इंटीजर्स, राइट, ठीक है। हम्म। नहीं का, ज्यादा होंगे, बिकॉज इल बी अदर वे अराउंड ऑल्सो ना। इट कुड बी 3 and 4 ऑल्सो, -3 and 4। हाँ, बहुत सारे कॉम्बिनेशन। हाँ, because x could be right from -5 to +5 and y could be also the same. नंदिनी 72 हो गया। Yes, I'm doing it, sir. When x is 0, it will be 5 and -5. When x is 3, it will be 4 and -4. When x is 4, it would be 3 and -3. When x is 5, it will be 0. When x is -5, it will be 0. Then it will be minus -4, the reverse also, no? So which one? -3, 4, -3, -4, -4, 3, and -4, -3. That's it. कोई डाउट इसमें, काव्या?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. हम कोऑर्डिनेट उसमें ज्योमेट्री में पढ़ेंगे सारा. सो 0, 3, -3, 4, -4, 5, -5, all these points lie on the boundary of the circle. सारे हो गए. 74. तुम कौन सा कर रही हो? 77 तक फिनिश करो, फिर हम फंक्शन का स्टार्ट करते हैं. जल्दी करो, बैठना नहीं है तुम्हें. 73 करो बोर्ड पे. ए एंड बी बोथ आर नेचुरल नंबर्स, है ना द्विका? इसमें तुम्हें जस्ट हिडन ट्रायल से करना है. ए बी की वैल्यू, ए को डाल दो, बी निकालो कितना आ रहा है. ये क्या हुआ? चलो, 99. बिकॉज उसमें ना एक्स एंड वाई की वैल्यूज विल इंटरचेंज. कोई बात नहीं, हो जाता है. एक एक यू कैन टेक 0, 1. नो, यू कैन टेक 0 बिकॉज होल इज ए नेचुरल नंबर, होल नंबर. हम्म. क्या हुआ? डोमेन तो भूल रही हो? फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे. रेंज वुड बी सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स. ठीक है. 74 कौन कर रहा है? कहा गया? कर लिया 74 ने? आओ फिर. हम्म, क्या हुआ ये? तुमने? नो, इट वाजंट यू. हो जाएगा, अभी आने वाला है. अद्विका, ये वाला क्वेश्चन करो फर्स्ट. हमने किया था क्या शुरू में? यहाँ से स्टार्ट नहीं किया ना? ये करो. पेज 11 ना? सॉरी, पेज 11. पेज चेंज है. ट्राई दिस. क्या हो रहा है?
हाँ ठीक है। तुम क्या थक गई हो? कौन सा है बताओ? 74 is this, it is the relatively prime. They are co-prime basically. That if I take 2, I can't, then I can't take 6 because 2 and 6, they're not co-prime because 6 is divisible by 2. But 2 and 3 are co-prime. That they don't have any common factor in between. So all those pair numbers which don't have any common factor. Hmm? Printing error है, typo. हाँ। कुछ मिसिंग तो नहीं है? What was set A? 2, 3, 4, 5. You can add domain range also. Yes. 2, 3, 2, 6, 2, 7 is there. 3, 7. 1 मिनट। सही है। क्या बोल रही हो? लिखा तो है, तुम पढ़ी नहीं रही हो। एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4 लिखा हुआ है। और तो एक्सेप्ट एक्स 1, 2, 3 डालोगे तो अपने आप वाई लिमिट हो गया ना फिर। हाँ, जो एक्स से कोरोस्पोंडिंग जो वैल्यूज आ रही है वही आंसर है बस। हाँ, दैट्स इट। हो गया। पुट एरो लगाओ। हाँ, तुम कर लेना। कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछना सेट्स के ना। हाँ। नंदिनी, विच क्वेश्चन? Sir, I'm on 75. ओके। द रूल इज 1 + a into b should be more than 0. मतलब 1 + ab should be a positive number. ये कुछ निकालना नहीं है, सिर्फ ये बोला प्रूव दैट ए बी बिलोंग्स टू R1 की मतलब वी कैन हैव टू नंबर्स सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। मतलब बाई नहीं, मतलब ये यू टेक टू नंबर्स इन सच ए वे दैट दिस इज सेटिस्फाइड एंड R1 इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बी सी। कुछ मिसप्रिंट है इसमें। It should be AB belongs to R1 and it should be AC. BC should R1 but it's not true for all ABC. कुछ मिसप्रिंट है इसमें, छोड़ दो उसको। मेरे ख्याल से तो फंक्शन आ गया ना उसके बाद। अभी फंक्शन कर लेते हैं फिर।
शैल वी स्टार्ट विद फंक्शन, बाकी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, तुम कर लेना खुद से, ठीक है। Okay. फंक्शन की डेफिनेशन लिखो, काव्या, एवरीवन, सृष्टि। अ फंक्शन, हाँ, अ फंक्शन इज said to be defined, a function is said to be defined from set A to B. A function, लिखो, a function is said to be defined from set A to set B, set A to set B, if each and every element, if each and every element of set A, each and every को underline कर लो, ठीक है। If each and every element of set A is related to, is related to exactly one, is related to exactly one element in set B. I'll repeat. A function is said to be defined from set A to set B if each and every element of set A has is related to exactly one element in set B. तो each and every को underline करो, exactly one को भी underline करो, ठीक है। तो अब मैं कुछ एरो डायग्राम बनाऊंगा। विद दिस डेफिनेशन यू बेसिकली आंसर फिगर आउट कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। विल डिस्कस इट लेटर, मतलब वंस यू आंसर ऑल ऑफ देम। सम एरो डायग्राम्स मैं बना रहा हूँ, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, क्यों नहीं, क्यों नहीं है वो भी तुम्हें रीजन लिखना है। टेक योर ओन टाइम बट आंसर इट करेक्टली, ऑल्सो राइट द रीजन why a given relation is not a function. So I've written 7 relations. All these are relations. With the help of definition, you identify कौन सा इसमें फंक्शन है कौन सा नहीं है, और जो नहीं है वो कौन सा नहीं है। नीड टू राइट, फिर हम डिस्कस करेंगे एंड में। यू हैव 10 मिनट्स, कम। पहले एक बार आंसर कर लो, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी लोग कर लो, लिख लो आराम से। हाँ हाँ, ले लो।
बट लिखोगे तो बेटर रहेगा। अरे लिखोगे तो अच्छा रहता है, मैथ्स हमेशा लिख के किया जाता है। बनाओ, एरो डायग्राम बनाओ। रीड द डेफिनेशन एंड सी। मुझे लगता है हो सकता है गलत हो। अच्छा पढ़ो डेफिनेशन। ये क्या है? Set A is related to exactly one element of हाँ, तो ये वाला फंक्शन है, three. फर्स्ट वाला। क्यों, उसमें वन थ्री किससे रिलेटेड है? चल, अरे मैं बोल तो रहा हूँ, इसको पढ़ो एक बार उसको। और ये नहीं चाहिए मेरे को। पहले तुम एरो डायग्राम बनाओ। रिवाइज नहीं करोगे घर पे? घर पे रिवाइज नहीं करोगी? करो फिर, लिखो। सबको एरो डायग्राम बनाना है। एरो डायग्राम बनाओ, बिकॉज व्हेन यू रिवाइज एट होम तुम क्या करोगे, अब इसमें आगे बढ़ेंगे ना। इसमें जो फंक्शन होंगे वो फिर और फर्दर डिफाइन करेंगे, ऑन टू इन टू। नहीं नहीं, बना लो अभी। नहीं नहीं, तुम तो वोंट यू रिवाइज एट होम? मतलब ये आंसर देख के तुम बनाओगे, वहां पे हमने ये किया था तो ये वाला सा डायग्राम था। इसको बनाओ अभी। इसको बनाओ, बिकॉज इसमें और फर्दर डिस्कस करेंगे ना हम आगे। बिकॉज इनकी फर्दर कैटेगरीज हैं। ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। हाँ। उनका बहुत बेसिक मैथ्स कराता हूँ मैं। ये वाला मैथ्स नहीं होता उनका। उनका होता है 6 to 10 प्लस यूसीड मैथ्स होता है, वो थोड़ा सा। मैथ्स वही 6 to 10 होता है, लेवल ऑफ थोड़ा ज़्यादा होता है। 11th 12th जो जेई पेपर 1 का होता है वही सेम लेवल। नहीं, नो केमिस्ट्री। नहीं, केमिस्ट्री इज नॉट। You have to have chemistry. No, you have to have chemistry. You have to have PCM to write, to be eligible to write J paper 2. But chemistry नहीं आएगा। Chemistry you have to pass because they want PCM। जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू आर ए 2 year स्टूडेंट जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज 2 year के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इस बार जो टॉपर है ना वो भी 2 year का ही है। आरव गॉट 7। नहीं नहीं नहीं, बिकॉज उस ऐसा था ना। अब पहले तो एक ही अटेम्प्ट हुआ करता था अप्रैल में। नाउ देयर 2 attempts। नो नो, फॉर जेई। नेक्स्ट, आई मीन नेक्स्ट ईयर 2025 चल रहा है ना, 27 में जनवरी बिगनिंग यू हैव योर फर्स्ट अटेम्प्ट। नहीं नहीं, दैट्स अ बैड आइडिया। बहुत ज्यादा। ये लोग आर्किटेक्चर को ऐसे समझते हैं, जेई को ऐसे समझते हैं, ऐसा नहीं है। जेई में बहुत टफ कंपटीशन है। हाँ वही ना, उनको पता नहीं है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, जो बेस्ट कॉलेजेस आर जेई ओनली, सारे अच्छे कॉलेज जेई में तो हैं। हाँ हाँ। सी आईआईटी, आई वाज इन लाइक रुड़की में, जो मेरे क्लासमेट्स हैं ना बी आर्क वाले, दे टुक आर्किटेक्चर बिकॉज दे कुडंट टेक अदर ब्रांचेस। तो आईआईटी से वही बी आर्क करता है जिसको बाकी अदर उसकी चॉइस की ब्रांच नहीं मिल पाती। क्या? हाँ नहीं, वो लॉन्ग में, लॉन्ग वे, आई मीन यू पास आउट। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट, देन यू हैव टू क्लियर द एडवांस्ड। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जिन बच्चों की ना रैंक बहुत पीछे आती है, 15,000 16,000, दे टेक आर्किटेक्चर बिकॉज दे कांट गेट देयर चॉइस ऑफ कॉलेज एंड द ब्रांच। लिख लिया सब? सब हो गया? ऐसे बहुत रेयर होते हैं, 2 year के तो ऐसे नहीं होते वैसे। 2 year वाले दे आर लिख लिया सारा? आंसर हो गया? नंदिनी हो गया?
यस। तो पहला वाला फंक्शन है या नहीं है? नहीं है। अद्विका तो बोल रही है। लेकिन सारे एलिमेंट्स ये नहीं है। मानती नहीं है, बोल रही है। बट सारे एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली वन। काव्या भी बोल रही है पहला वाला फंक्शन। सृष्टि, है ना? है। ये बहुत जोर से फंक्शन नहीं है। रीड द डेफिनेशन। मैंने कहा था डेफिनेशन पढ़ लो बार बार, तुम लोग मानते ही नहीं हो। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज। मैंने कहा था ईच एंड एवरी को अंडरलाइन करो। तुमने बात नहीं मानी, तुम फोटो खींचने में लगे हो, सेल्फी ले रहे हो। हाँ, तुमने पढ़ा नहीं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज। तो इट्स नॉट ए फंक्शन, मैंने हटा दिया। व्हाट ऑफ टू, नंबर टू? हाँ, नंदिनी तुम बताओ, ये लोग मानते ही नहीं है बात, ये कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। नंबर टू इज अ फंक्शन। तुम बताओ, ये क्या? तो मतलब ये नहीं है तो ये होगा होगा। तुम बताओ, है? काव्या, देख लो, पक्की बात है। बी का ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। नाउ यू गॉट इट। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एग्जैक्टली वन इमेज, वन का एग्जैक्टली वन इमेज बी है, टू का एग्जैक्टली वन इमेज ए है, और थ्री का भी एग्जैक्टली एक इमेज बी है। So if 3 suppose has two images B and D, it won't be a function. हाँ, राइट राइट, नंदिनी तुम तो समझदार हो गई बहुत ज्यादा। गुड, आई लाइक इट। थर्ड बताओ अब। थर्ड है? हाँ, इट इज। फोर्थ? क्यों? It's not a function, sir. ये फॉल हो रहा है यहाँ पे ना। अगर रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा होता तब भी हमें आइडेंटिफाई कर लेते। वन हैज टू इमेजेस विच इज नॉट अलाउड। इट इज बेसिकली अ रिलेशन विच इज वन टू मेनी। वन टू मेनी रिलेशन इज नेवर a function. वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट a function, ठीक है? सो वेरी सॉरी फॉर दिस। फिफ्थ, ये भी सेम है, सेम रीजन, ये भी नहीं है। सिक्स्थ और सेवेंथ, गुड। तो चार तरह के रिलेशंस होते हैं। मेनी टू मेनी, वन टू मेनी, वन टू वन एंड मेनी टू वन। तो इन चार रिलेशन में सिर्फ दो ही फंक्शंस होते हैं। ओनली टू आर फंक्शंस। वन टू वन फंक्शन होता है और मेनी टू वन होता है। मेनी टू मेनी भी नहीं होता। मैंने इसमें मेनी टू मेनी बनाया नहीं। ये मेनी टू मेनी तो था ये। मेनी एलिमेंट्स हियर आर रिलेटेड टू मेनी एलिमेंट्स देयर। दिस वन इज मेनी टू मेनी। तो ये रिलेशन तो है बट इट्स नॉट ए। हाँ, वही है ना। क्यों? वन की दो इमेज है, लेकिन बी भी दो दो एलिमेंट का इमेज है ना। देखो, ये मेनी टू वन है। इट इज मेनी टू वन है। वन टू मेनी भी है। इट इज मेनी टू मेनी। A relation which is many to one and one to many is many to many. So that's why it's not a relation. ये सारे रिलेशन थे बट ये फंक्शन सिर्फ यही दो ही होंगे ना। अगर हमें ग्राफ पता है किसी रिलेशन का, तब भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या रिलेशन है। मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूं। यूजिंग ग्राफ ऑल्सो वी कैन आइडेंटिफाई। पहले ऐसा करते हैं, वन टू वन की बात कर लेते हैं। वन टू वन की डेफिनेशन लिखो। वन टू वन का एक और भी नाम है, जैसे तुम्हारे दो या तीन नाम होते हैं घर के, घर उसी तरह से इसका भी दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। वन टू वन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखो। हम्म। हाँ, अब इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इन इन वन टू वन फंक्शन
हम एंट्रेंस में तो आएगा ना। इन नाराज हो गई है तो। इन इंजेक्टिव और वन 6 to 10th। प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क। यस, वो करना पड़े। नहीं, वो नहीं आएगा। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम भी सारा आएगा। टाइम एंड वर्क, वो आएगा, काम आएगा नाटक के लिए। वो बाद में, एंड में, बिल्कुल जब जेई ओवर हो जाएगा ना, 2027। हाँ, बिकॉज वो बहुत बेसिक है। हाँ, वो हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, लिखो पहले इंजेक्टिव की डेफिनेशन लिखो। ए फंक्शन इज 1 to 1 और इंजेक्टिव if each and every element if each and every element of set A if each and every element of set A has a unique image has a unique image in set B। यूनिक को अंडरलाइन कर लेना आप। इन सेट बी, इन सेट, यूनिक इमेज इन सेट बी, इन सेट बी ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो ईच एंड एवरी को अंडरलाइन कर लो और यूनिक को भी अंडरलाइन कर लो। अब मुझे बताओ, जो जो यहाँ पे रिलेशन तो मैं हटा देता हूँ। दिस इज गॉन। ये रिलेशन था। वैसे सारे रिलेशन है, वैसे तो जो फंक्शन नहीं है वो हटा रहा हूँ मैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शन जो बोर्ड पे भी लिखा बना हुआ है वो 1 to 1 है? 6 ऑल्सो एंड 3 ऑल्सो, यही है। देखो, इसको रोस्टर फॉर्म में अगर तुम लिखोगे तो क्या आएगा? 1B, 2A एंड 3B। दो एलिमेंट का सेम इमेज है, इट्स नॉट 1 1। इसका क्या होगा रोस्टर फॉर्म? 1B, 2C एंड 3A। each and every element of this has a unique image। ये 1 1 है। व्हाट अबाउट दिस? इसका रोस्टर फॉर्म क्या हुआ? 1C, 2B एंड 3A। ये भी 1 1 है। दीज टू आर 1 1 फंक्शंस। वन टू मेनी फंक्शन नहीं होता। वन टू मेनी फंक्शन नहीं होता। ये चार, ये चार रिलेशन हैं, उनमें से ये दो फंक्शन है। ये तो 1 1 है। हाँ, 1 1 फंक्शन है ना ये। इट इज 1 1। सेट्स में तो नहीं कराया ज्यादा बार। कुछ क्वेश्चंस हमने किए होंगे असाइनमेंट में। तुम कर लेना, पूछ लेना, जो नहीं होगा तो पूछ लेना। हाँ, अब हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। एवरी चैप्टर कुछ बहुत ज़्यादा होगा उसमें। तो हम सारी आइडेंटिटीज डिराइव करेंगे, सो दैट बिकॉज आइडेंटिटीज विल बी यूज इन 12th ऑल्सो, यू विल बी यूजिंग देम इन अदर सब्जेक्ट एज वेल। सो आइडेंटिटीज तो हम डिराइव करेंगे, राइट फ्रॉम वन आइडेंटिटी डिराइव ऑल द आइडेंटिटीज, ताकि वो याद हो जाए तुम लोगों को। हाँ, फिजिक्स में भी यूज होगा। नहीं नहीं, डिराइव का अभी हम डिराइव करेंगे, तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगी, वो प्रिंट हो जाएंगी। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखो अब। सरजेक्टिव और ऑन टू फंक्शन। ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन। यस, हिंदी में तुम उसको बोलोगे सुरजेक्टिव। मोन टू नहीं, ऑन टू। ऑन टू, ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन। नहीं नहीं नहीं, मेनी टू वन नहीं है। मेनी टू वन का नाम मेनी टू वन ही है। ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन है। ऑन टू So फंक्शन। we haven't done this function in school. हाँ, व्हाट? We haven't done this function in school. तो स्कूल में नहीं किया, यहाँ तो करेंगे ना। स्कूल इज स्कूल, कोचिंग क्लास है नॉट कूल। हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तुम जे की तैयारी कर रही हो। नंदिनी, आर यू राइटिंग जेई और नॉट?
Yes, I am. बस तो फिर करना है हमें। लिखो। अभी तो मैं बहुत कम एक्स्ट्रा करा रहा हूँ तुम्हें। ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्ट डेफिनेशन लिखो। इन ऑन टू फंक्शन, इन ऑन टू फंक्शन, each and every element of set b, each and every element of set b, ब्रैकेट में लिखो कोडोमेन, each and every element of set b, ब्रैकेट में कोडोमेन, is related to, is related to at least, is related to at least one element in set a, is related to at least one element in set a। तो इसको बोला जाता है ऑन टू फंक्शन। कहने का मतलब ये हुआ, सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा जिसका प्री इमेज ना हो। ठीक है, देयर बी नो एलिमेंट लेफ्ट आउट। आगे लिख लो इसके, दैट इज, इसमें आगे लिखो दैट इज, नो एलिमेंट इज लेफ्ट आउट इन सेट बी, नो एलिमेंट इज लेफ्ट आउट इन सेट बी which does not have a pre-image, which does not have a pre-image. Also range is equal to codomain, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो ऑन टू फंक्शन में, सर्जेक्टिव फंक्शन में रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगे। यस। अब मुझे बताओ इन चारों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन ऑन टू है। वो फंक्शन ऑन टू है जिसमें रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल, और यू कैन से दैट रेंज इज improper सबसेट ऑफ कोडोमेन। ऐसा करते हैं, इसका रेंज लिखते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद सृष्टि। इसका तुम रेंज एंड डोमेन लिखोगे वन का, इस वाले का। फिर एक तुम लिख देना, एक काव्य, एक, चारों लिखो वन वन। चारों फंक्शन के रेंज एंड कोडोमेन बोर्ड पे लिख दो। तुम थ्री का लिख देना, रेंज एंड कोडोमेन लिख दो सबके। कोडोमेन तो सेट बी हो गया, डोमेन भी लिख देना। हाँ, सेट नहीं नहीं, सेट ए हमेशा फंक्शन में पूरा सेट ए डोमेन होता है। सेट बी इज कोडोमेन, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सेट बी रेंज के इक्वल हो। उसके छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो इसने नंबर टू का लिखा है, जबकि इसका कोडोमेन है। कोडोमेन भी लिख दो पूरा, ऊपर लिख दो चाहे। कोडोमेन इज ए बी सी डी। अभी हम सिर्फ 5 और 10% एक्स्ट्रा कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर ज्यादा करेंगे, पूरा ही कर लेंगे फिर, वरना तुम लोग। थर्ड का कर रही हो ना। ये इसका कोडोमेन हो गया। डोमेन क्या हुआ? डोमेन इज एंटायर सेट। फंक्शन में पूरा का पूरा सेट ए डोमेन होता है, जबकि रिलेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रेंज लिखो इसका, रेंज इज, काव्या तुम कौन सा कर रही हो? सिक्स कर दो, तुम सेवन लिख देना, ठीक है। और जो भी हम यहाँ पे क्लास में करेंगे वो तुम्हारे टेस्ट में भी आएगा। यहाँ पे जो एमसीक्यू टेस्ट होंगे। अभी कोई टेस्ट हुआ है एप्टीट्यूड का? नहीं, यहाँ पे कोई हुआ, हो रहा है? अच्छा, अनाउंस हो जाएगा उसके बाद। एप्टीट्यूड वन, 1 वीक एप्टीट्यूड, 1 वीक मैथ्स, देन ड्राइंग, लाइक दैट। ये मे बी नो, सारे लर्निंग है एप्टीट्यूड में, लर्निंग ही है। वो भी है, दैट्स ए लिटिल पार्ट। क्या हुआ? अरे यार, ये रहा ना, इरेजर ये रहा। फिर तुम जब भी आते हो ना, कुछ हो जाता है इसको। अरे तुम, ये
ये जब भी काव्य आती है ना पिछली बार भी ऐसे हुआ था। बस बहुत 5 मिनट बहुत होते हैं। जब तुम्हारा टेस्ट होगा ना 5 मिनट पहले एक ले लूंगा आंसर शीट, ठीक है? फिर बोलूंगा इससे 5 मिनट बचे हैं। हाँ, बर्थडे तुम्हारा। चलो से 9 जून। डे कौन सा है? ओके। फिर कैसा हुआ? आ गया था ना वो केमिस्ट्री की नॉलेज से भी हो जाता है। हाँ, तो जब तुम बिल्कुल वैसे करोगे तो। नेक्स्ट कौन कर रहा है? लिखो लास्ट जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते। आओ। कौन सा ये? नेक्स्ट वाला। अब उसके बाद नाउ यू कैन टेल मी इन चारों फंक्शन में कौन सा फंक्शन ऑन टू है। जिस फंक्शन में रेंज एंड कोडोमेन इक्वल होंगे, दैट फंक्शन वुड बी द ऑन टू फंक्शन। एबीसी हो जाएगा। नहीं। 3 में डी आउट है ना। हम्म। हम्म। So now the function in which range and codomain are equal is basically 7 and 6। इन दोनों फंक्शन में रेंज एंड कोडोमेन इक्वल है। दे आर ऑन टू फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है? ये वाला फंक्शन कौन सा था? 1 1 भी था ना। दिस फंक्शन वॉज 1 1 ऑल्सो। तो पूरा फंक्शन क्या बन गया? ये 1 1 एंड ऑन टू। इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव 1 to 1। हाँ। अब नेक्स्ट तो बहुत और भी डिटेल में करेंगे, बहुत ज्यादा। तो वो बाइजेक्टिव से सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन भी इन्वर्टिबल होते हैं। लाइक नेक्स्ट विल बी स्टडिंग इनवर्स फंक्शन आल्सो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। तो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होते हैं। तो ये 1 1 ऑन 2 हो गया, ठीक है? 1 1 भी है, ऑन टू भी है। देखो 1 1 और मेनी वन दे आर डिसजॉइंट। सिमिलरली ऑन टू एक इनटू भी होता है, जो ऑन टू नहीं का उसको इनटू बोलते हैं। ये वाला कौन सा हो गया फिर? 6 हो गया। दिस इज किसका? इनटू का बस इनटू नाम है और कुछ नहीं है। इट डजंट हैव एनी अदर नेम। समथिंग सी अ फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू। तो 1 1 ऑन 2 हो जाता है, फिर मेनी वन ऑन टू भी हो सकता है। मेनी वन ऑन टू भी है। मैंने शायद यहाँ मेनी वन ऑन टू बनाया नहीं है ना। बट वी मे हैव मेनी वन ऑन टू ऑल्सो। लाइक इफ आई ड्रॉ मेनी वन ऑन टू, कैसे बनेगा? ABC 1 2। ये मेनी वन ऑन टू हो गया। इसका रेंज 1 2 है और कोडोमेन भी 1 2 है। इट इज मेनी वन ऑन टू। ऑन टू का मतलब रेंज एंड कोडोमेन इक्वल होने चाहिए। 1 1 तुम्हें पता ही है ना? तो नेक्स्ट स्टोरी ट्यूसडे को। और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो मेरे को बता देना। ट्यूसडे को विल स्टार्ट विद फंक्शन। नहीं, फंक्शन चलेगा अभी तो। रेंज डोमेन करने के बाद आई स्टार्ट विद टिको। टिको का असाइनमेंट सबको मिल चुका है ना? ओके। तुम्हारी फिर क्लास उधर शिफ्ट हो जाएगी मेरी, बिकॉज यहाँ पे 1 ईयर की मैथ्स क्लास होती है ना? Sir, I haven't gotten the trigger worksheet. अरे तो मैं ऑनलाइन कैसे सेंड करूंगा मैं? आओगी तो Uh, मिलेगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? okay. ऑलराइट। Bye, sir. Thank you. बाय।